हरे कृष्णा। तो आज हम देखेंगे 2.17 ऑफ भगवद गीता। लास्ट टाइम हमने गाया था, आज फिर से गाए एक बार। हाँ। अविनाशी तु तद्विधि अविनाशेतु तद्विधि येन सर्वम् इदं ततं येन इदं ततं विनाशम् अव्यवस्यास्य विनाशम् अवरस्य यास्य कश्चित् कर्मर्थति। न कश्चित् कश्चित् कर्मणि That which pervades the entire body, the entire body you should know you should know should know to be indestructible. to to be be in the indestructible. No one is able to destroy that imperishable soul. No one no is one able to can destroy destroy that imperishable soul. पपट पर शिल प्रभुपाद की जय। yeah. पैराग्राफ पढ़ना, कौन पढ़ोगे? माताजी मैं पढ़ूं? माताजी This can I verse, बढ़ो। this verse is more clearly explains the real nature of the soul, which is spread all over the body. Anyone can understand what is spread all over the body. It is consciousness. Everyone is conscious of pains and pleasures of the body in part or as a whole. The spreading of consciousness is limited within one's own body. The pains and pleasures of the body are known to another. Therefore, each and every body is embodiment of individual soul, and the symptom of the soul's presence is perceived as the individual consciousness. This soul is described as 1/10,000th part of the upper portion of the hair point in size. In Shweta Shvetashvatar Upanishad confirms this. When the upper point of hair is divided into 100 parts, and again each of such part is further divided into 100 parts, each such part is the measurement of the dimension of the spirit soul. Similarly, the same version is stated. There are innumerable particles of spiritual atoms which are measured as 1/10,000th of the upper portion of the hair. Therefore, the individual particle of spirit soul is spiritual atom smaller than the material atoms, and such atoms are innumerable. This very small spiritual spark is a basic principle of material body, and influence of such a spiritual spark is spread all over the body as the influence of the active principle of some medicine spreads throughout the body. This current the spiritual of the spirit soul is felt all over the body as consciousness, and that is the proof of presence of the soul. Any layman can understand that material body minus consciousness is a dead body, and this consciousness can be revived in the body by any means of material administration. Therefore, the consciousness is not due to any amount of material combination but to spirit soul. In Mundak Upanishad, the measurement of the atomic spirit soul is further explained. The soul is atomic in size and can be perceived by the perfect intelligence. This atomic soul is floating in five kinds of air: pran, apan, vyan, saman, and udan. Is situated within the heart and spreads its influence all over the body of the embodied living entities. When the soul is purified from the contamination of five kinds of material air, its spiritual influence is exhibited. The Hatha Yoga system is meant for controlling the five kinds of air encircling the pure soul by different kinds of sitting postures, not for any material profit, but for liberation of minute soul from the entanglement of material atmosphere. So the constitution of atomic cell is admitted in all Vedic literature, and it is also actually felt
felt in the practical experience of any sane man. Only the insane man can think of this atomic soul as all-pervading Vishnu Tattva. The influence of the atomic soul can be spread all over the particular body. According to Mundak Upanishad, this atomic soul is situated in the heart of every living entity, and because the measurement of the atomic soul is beyond the power of appreciation of the material scientists, some of them assert the foolishly that there is no soul. The individual atomic soul is definitely there in the heart of along with the super soul, and thus all the energies of bodily movement and emanating from this, all the energies of bodily movement are emanating from this part of the body. The corpuscles which carry the oxygen from the lungs gather energy from the soul. When the soul passes away from the position, the activity of the blood generating fusion ceases. The medical science accepts the importance of red corpuscles, but it cannot ascertain that the source of energy is soul. The medical science, however, does admit that the heart is the seat of all energies of the body. Such atomic particles of the spirit world are compared to the sunshine molecules. In the sunshine, there are innumerable radiant molecules. Similarly, the fragmental parts of the Supreme Lord are atomic sparks of the ray of the Supreme Lord, called by the name Prabha, or the superior energy. Whether one follows the Vedic knowledge or modern science, one cannot deny the existence of spirit soul in the body, and the science of soul is explicitly described in Bhagavad Gita by the personality of Godhead himself. जय श्रील प्रभुपाद की जय। वेरी गुड। सो पर्पॉट में, इस श्लोक के पर्पॉट में हमें पता चलता है, सबसे पहले तो दिस श्लोक इज ऑल अबाउट गिविंग यू साइंस ऑफ सोल। ठीक है, इस श्लोक अगर आपके हैंड में भगवत गीता होगी तो वहां पे लिख लो पेंसिल से कि ये वाला जो श्लोक है ना, अविनाशी तु तद्विधि ये न सर्वमिदं ततम विनाशम अव्यवस्यास्य न कश्चित करुम अर्हति। तो ये वाला श्लोक है, इस श्लोक को ही साइंस ऑफ सोल कहा गया है 2.17 को। ठीक है, आपको अगर आत्मा होती क्या है इसका अगर ज्ञान चाहिए होगा ना, सीधे इस श्लोक पे आना और इसका पर्पॉट पढ़ना, आपको पूरा आत्मा का विवरण मिल जाएगा। आपको पूरी लाइफ में कभी इधर से उधर भागने की जरूरत नहीं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं कि मैं क्या हूँ, मैं दिखता कैसे हूँ, या फिर मैं ओरिजिनली एग्जैक्टली व्हाट इज माय पोजीशन, ये आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं। आपको इस श्लोक में आके अपने बारे में ज्ञान मिल जाएगा कि हम एक्चुअली दिखते कैसे हैं। हम एक्चुअली ये जो बॉडी है वैसे नहीं दिखते, हम दिखते कैसे, इसके पर्पॉट में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि रियल नेचर क्या है आत्मा का, मतलब हमारा रियल नेचर क्या है इसमें पता चलता है। इसमें पूरी तरह लुक्स पे ध्यान दिया है, ज्यादा से ज्यादा लुक्स, मतलब आत्मा के लुक्स। आत्मा दिखती कैसे, छुटकी सी होती है। ठीक है, जो पूरी बॉडी में उसकी फीलिंग स्प्रेड ओवर होती है। आपको भी पता है कि आत्मा अगर बॉडी से निकल जाती है और उसको आप चूटी काटो, कुछ भी करो, तो बॉडी को फील होता है क्या? आत्मा एक बार बॉडी से निकल गई तो उसको तो आप आग लगा दो फिर भी बॉडी को फील नहीं होता। इसका मतलब सारी फीलिंग्स किसकी वजह से है? सिर्फ आत्मा। सर से लेके पांव तक, सर से लेके पांव तक कुछ भी हो जाता है। एक पतला सा आप बाल भी खींचते हो ना अपने स्काल्प पे, और स्काल्प पे भी फील होता है, तो दैट इज द प्रूफ कि शरीर में आत्मा है। किसी के तलवे को गुदगुली करो और वहां पे अगर उसको फील होता है, इसका मतलब आत्मा है। ये आत्मा की वजह से उसको फीलिंग आ रही है, पूरी बॉडी में फैली हुई है। और एनीवन कैन टेल दैट इट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब चेतना। हमने उस दिन डिस्कस किया था ना, कितने टाइम की चेतना होती है? 5 टाइप की चेतना होती है। पहले टाइप की चेतना कौन सी होती है? आच्छादित चेतना। आच्छादित चेतना मतलब किसमें होती है आच्छादित चेतना? रॉक्स एंड प्लांट्स एंड नॉन मूविंग एंटिटीज में, है ना। प्लांट्स, हर्ब्स, श्रब्स और रॉक्स,
ये सब में आच्छादित चेतना होती है। दूसरी चेतना कौन सी होती है? संकुचित। संकुचित चेतना किस में होती है? संकुचित चेतना, संकुचित मतलब बिल्कुल, संकुचित चेतना। शाबाश, स्टंटेड कॉन्शियसनेस कहते हैं उसको। स्टंटेड कॉन्शियसनेस किस में होती है? किस में होती है? एक्वेटिक्स एनिमल्स में होती है। जंगल के एनिमल्स हो गए, एक्वेटिक्स हो गए, पानी के एनिमल्स हो गए, जितने भी एनिमल्स है, फिर बर्ड्स हो गए हवा में उड़ने वाले, इंसेक्ट्स हो गए, है ना, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एक्वेटिक्स, एनिमल्स, ये है, इनके अंदर संकुचित चेतना होती है। मतलब क्या? आत्मा के साथ कोई ना कोई चेतना तो हमेशा कनेक्टेड रहेगी, चाहे वो पत्थर के अंदर हो, चाहे वो किसी एनिमल के अंदर हो। संकुचित चेतना मतलब वो टाइप की कॉन्शियसनेस होगी। तीसरी टाइप की कॉन्शियसनेस हमने कौन सी देखी थी? मुकुलित। मुकुलित मतलब बडिंग कॉन्शियसनेस, ये इंसानों के अंदर होती है। बडिंग कॉन्शियसनेस मतलब वो जो इंसान जो अभी एनिमल से इंसान बन रहा होता है, मतलब एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज ज्यादा से ज्यादा होती है उसके अंदर, और भगवान के बारे में कुछ भी दिमाग में भगवान घूमते ही नहीं है, बस एनिमलिस्टिक टेंडेंसी, उसको बस मांसाहार करना होता है और खाना पीना होता है, सोना होता है और अपना अपना रक्षण करना होता है, उसको ज्यादा कुछ पड़ी नहीं है भगवान की, पूछता भी नहीं है। फिर उसके बाद ब्लॉसमिंग, विकसित, ब्लॉसमिंग कॉन्शियसनेस। ब्लॉसमिंग कॉन्शियसनेस में आत्मा खोज करने लगती है, सत्य की खोज पे निकल जाती है। सत्य की खोज में उसको पता चलता है शरीर टेम्पररी है, आत्मा कभी बदलती नहीं है, और शरीर कभी बदलना छोड़ता नहीं है, शरीर हमेशा ही बदलता रहता है। तो उसकी विकसित चेतना, जहाँ पे वो प्रश्न पूछता है और सत्य की खोज में निकलता है, कोई ना कोई सत्य उसके पल्ले जरूर पड़ता है। और फिर पूर्ण विकसित चेतना, जहाँ पे उसको सत्य पूरी तरह पता चलता है और पूरी तरह शरणागति ले लेता है। तो ये 5 कॉन्शियसनेस हर आत्मा की, कोई ना कोई आत्मा इन 5 कॉन्शियसनेस में ड्वेल कर रही होती है। तो हर आत्मा के पास कोई ना कोई कॉन्शियसनेस है। प्रूफ क्या है बताओ मुझे? आच्छादित चेतना का प्रूफ बताओ कि कैसे पता है कि ये सारा आच्छादित चेतना इसमें भी होती है, कैसे पता आपको? हैं जी, पत्थर में भी चेतना है, ये कैसे, प्रूफ कैसा है? अहिल्या को जब श्राप मिला था, वो पत्थर में थी या नहीं थी? उसका उद्धार भगवान ने आके किया था ना पत्थर में। अभी पेड़ों में आत्मा, हाँ नलकुबेर है ना, नलकुबेर, मणिग्रीव पेड़ों में थे या नहीं थे? हाँ थे या नहीं थे? तो उनकी उनकी चेतना कौन सी हो गई? आच्छादित। आच्छादित चेतना। पेड़ों में आच्छादित चेतना है, उनका भी उद्धार किया या नहीं किया भगवान ने? यस माता जी। इसका मतलब कॉन्शियसनेस थी या नहीं थी? थी ना उनमें, हाँ हाँ थी ना। अभी जो किंग नृग थे लिजर्ड बॉडी में थे, लिजर्ड बॉडी में, तो उनके पास कौन सी चेतना थी? संकुचित चेतना। शाबाश, संकुचित चेतना हो थी या नहीं थी? फिर वो उद्धार हुआ या नहीं हुआ उनका? भगवान ने किंग नृगा का उद्धार किया या नहीं किया? हाँ भरत माता जी, और महाराज, जटायु भी। भरत महाराज, जटायु। हाँ जटायु, भरत महाराज भी डियर बॉडी में थे या नहीं थे? भरत महाराज डियर की बॉडी में थे ना, यस माता जी। उद्धार किया ना, यस माता तो जी। कॉन्शियसनेस है ना। यस माता जी। तो हर आत्मा के पास, उनके पास कौन सी थी? डियर बॉडी में थे भरत महाराज, तो कौन कौन सी कॉन्शियसनेस थी? संकुचित चेतना। संकुचित, शाबाश, संकुचित थी। सुरभि, सुरभि जो होती है काव बॉडी में होती है, पृथ्वी माता काव बॉडी में चली जाती है, उनके पास भी थी ना आत्मा, ये कॉन्शियसनेस तो थी। गजेंद्र एलिफेंट बॉडी में था, तो इनके पास भी कॉन्शियसनेस होती है, ये हमें ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। जामवंत, जामवंत भी था ना, जामवंत किसकी बॉडी में था? बियर की। बियर, संकुचित चेतना, या एग्जैक्टली, दिया जामवती के पापा, हाँ जामवंत बियर बॉडी है। अंगद हो गया, सुग्रीव हो गया, मंकी बॉडी में थे या नहीं थे ये लोग? राइट, देवर इन बॉडीज ऑफ मंकी ना। तो माता इनके जी। पास संकुचित चेतना है या नहीं है? माता जी। हाँ जी, माता जी, बट हनुमान जी जो थे वो भी तो वानर के शरीर में थे, बट उनकी तो पूर्ण विकसित चेतना थी। हाँ एग्जैक्टली। सो वी आर व्हाट वी आर प्रूविंग हियर, दैट एवरी आत्मा इज accompanied with consciousness.
अभी भगवत गीता में लिखा है ना, इट इज कॉन्शियसनेस स्प्रेड ऑल ओवर बॉडी। दिख रही है या नहीं दिख रही है आपको? हाँ माता जी, बट मतलब ऐसे चेंज भी हो सकता है क्या चेतना? If you are devotee of Krishna, what is impossible? Everything is possible, na? Whatever Krishna wishes, it is possible. मतलब माता जी, एक रॉक को भी पूर्ण विकसित चेतना मिल सकती है? हाँ, अहिल्या को नहीं मिली? She will not move, na? Body will not move, but they will have a consciousness, na? इम्पॉसिबल एक चीज है, हाँ, गो टू नर्क, इम्पॉसिबल। हाँ, one who is devotee, it is impossible to go to nirk. अच्छा सुनो, so anybody can understand that soul is accompanied with consciousness. अब समझ में आई? आत्मा को ये होती है, कॉन्शियसनेस होती है आत्मा के साथ। सब समझ में आ रहा है क्या? चेतना का मतलब क्या है? यस माता जी। चेतना का मतलब समझ में आ रहा है? इतना ही समझो कि आत्मा के साथ कॉन्शियसनेस, आत्मा और कॉन्शियसनेस साथ साथ चलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आत्मा अलग है और कॉन्शियसनेस अलग है। आत्मा की कॉन्शियसनेस, आत्मा इटसेल्फ इज कॉन्शियसनेस, उसके अंदर कॉन्शियसनेस होती है। सो एवरीवन इज कॉन्शियस ऑफ पेन एंड प्लेजर ऑफ बॉडी। आई बात समझ में? इन पार्ट और एज होल। इन पार्ट मतलब पत्थर को आप बहुत मारते मारते पत्थर की मूर्ति बनाते हो, स्टैचूज बनाते हो, तो उसको कॉन्शियसनेस होती है क्या? बहुत कम कॉन्शियसनेस होती है। आच्छादित कवर्ड कॉन्शियसनेस होती है। दर्द होता है क्या? थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन फील होता है क्या? नहीं फील होता, फील नहीं होता। आम नीचे गिरता है, फील होता है क्या आम को? नहीं फील होता। सो दैट इज कॉल्ड आच्छादित चेतना। प्लेजर्स ऑफ बॉडी इन पार्ट और एज होल। इन पार्ट, अभी अगर आप गोट को थोड़े से लाठी से मारोगे, उसको पेन होगा या नहीं होगा? काव को लाठी से मारोगे, पेन होगा ना? होता है या नहीं होता? एनिमल्स को पेन होता है ना? सो दे विल फील द पेन, लेकिन उतनी ही शक्ति से, जितनी शक्ति से आप काव को या फिर गोट को मार रहे हो डंडे से, या फिर आप किसी डॉग को मार रहे हो किसी डंडे से, उतनी ही शक्ति से आप इंसान को मारो, इंसान को ज्यादा दर्द होगा ना? यस माता जी। नहीं होगा। तो आपका पेन का जो फीलिंग है ना, वो बॉडी के साथ बढ़ता जाता है। आपको किस टाइप की बॉडी मिली है उसके हिसाब से आपका पेन का लेवल, टॉलरेंस लेवल डिपेंड करता है बॉडी पे। सो एवरी कॉन्शियस कैन फील द पेन एंड प्लेजर। आई बात समझ में? हर एक जन जिसके अंदर आत्मा है वो सब फील कर सकते हैं। पूरी तरह फील कर पाएंगे या इन पार्ट्स फील कर पाएंगे। इसलिए क्लास में अगर दो बच्चों को पनिशमेंट मिलती है, एक बच्चा बहुत दिल पे ले लेता है और दूसरे बच्चे के लिए तो इट इज जस्ट अनदर रूटीन फॉर हिम, राइट? इट इज जस्ट अनदर पनिशमेंट। वो काफी ठीक ठाक हैंडल कर लेता है, लेकिन उसमें से कोई एक बच्चे को बहुत दिल पे लग जाती है। सो एवरी कॉन्शियस हैज अ पेन एंड प्लेजर इन पार्ट और एज अ होल। हर एक को फील होता है। दिस स्प्रेडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस इज लिमिटेड विद इन वंस ओन बॉडी। अब आत्मा का जो क्षेत्र है, आत्मा का क्षेत्र शरीर तक है ना? कृष्णा का क्षेत्र क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी है, मटेरियल वर्ल्ड भी है, लेकिन हमारा क्षेत्र कहाँ पे है? सिर्फ बॉडी तक। ऐसा हो सकता है क्या हमें कोई गाल पे मारे और टेबल को दर्द हो? नहीं हो सकता ना? होता है क्या ऐसे? नो माता जी। लेकिन पृथ्वी माता अगर जीवात्माओं को खाना नहीं देगी तो कृष्णा को दर्द होता है या नहीं होता? होता है माता जी। है ना? दिस इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। कृष्णा की कॉन्शियसनेस इज स्प्रेड ओवर मटेरियल एंड स्पिरिचुअल बॉडी, एंड आर कॉन्शियसनेस इज ओनली स्प्रेड ओवर आर बॉडी। तो दूसरे को चूटी काटेंगे तो हमें दर्द नहीं होता, लेकिन हमें कोई चूटी काटे तो हमें पक्का दर्द होता है। अंडरस्टूड? हैव सम वाटर। So the pains and pleasures of one body are unknown to another. मेरी बॉडी का पेन आपको फील नहीं होगा, आपके बॉडी का पेन हमें फील नहीं होगा। गॉट इट? तो आत्मा का एरिया समझ में आ गया? कितने एरिया तक पेन फील हो सकता है या फिर हैप्पीनेस फील हो सकती है? जिस बॉडी में आत्मा है सिर्फ उतने ही एरिया में फील हो सकती है, उसके बाहर नहीं फील होती। एवरीबडी विथ मी? तो ये पॉइंट लिख लो इस श्लोक का। सबसे पहला पॉइंट है एवरी सोल हैज कॉन्शियसनेस। सोल हैज कॉन्शियसनेस। दूसरा पॉइंट है कि सोल्स जितना भी सोल का जो कॉन्शियसनेस है, इट इज लिमिटेड टू ओनली वंस बॉडी। ऐसे लिखो, सोल इक्वल टू कॉन्शियसनेस लिमिटेड टू
one's own body. That's all. ये दूसरा पॉइंट है, याद रखना हमेशा आपको जोन, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस पता होना चाहिए. जैसे आप घर पे बहुत टैंट्रम थ्रो करोगे तो मम्मी पापा को अफेक्ट होगा, लेकिन वही टैंट्रम आप रोड पे थ्रो करोगे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका कोई डिजायर कोई पूरा नहीं करेगा. इसको कहते हैं एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस. आपका आत्मा का भी एरिया कहाँ तक है? आपके शरीर तक ही है. अंडरस्टूड? नाउ द पेन एंड प्लेजर ऑफ वंस बॉडी आर अननोन टू अनदर. अपनी बॉडी का पेन दूसरों को नहीं पता चलता, इसलिए दूसरों का भी बॉडी का पेन हमें नहीं पता चलता. Therefore, each and every body is embodiment of individual soul and symptom of soul's presence is perceived as individual consciousness. अभी soul is described. soul को श्वेताश्वतर उपनिषद में क्या बोला गया है? बालाग्र सतभागस्य सतधा कल्पतिस्य च भागो जीव स विज्ञेय स चानंतय कल्पते. तो अपर पॉइंट ऑफ द बॉडी, आपका हेयर है, आपके बाल है, उसका अपर पॉइंट ऑफ द हेयर है, उसको डिवाइड करो 100 पार्ट्स में. कर लिया मन में 100 पार्ट्स में डिवाइड? टिप ऑफ द हेयर है, उसको काटो और उसको 100 पार्ट्स में कट करो. कर दिया? कर दिया या नहीं कर दिया? अब उस 100 पार्ट में से एक पार्ट उठाओ, उसको 100 पार्ट्स में और कट करो. कर दिया? सो अब इतना जो पार्ट है ये हो गया आत्मा. ऐसी आत्मा दिखती है छोटी सी, इतनी छोटी आत्मा होती है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस देखा, हाथी के बॉडी में चली जाएगी तो पूरे बॉडी पे फीलिंग होगा. हाथी की सूंड पे भी फील होगा, इतनी बड़ी पेट पे भी फील होगा. जिराफ की बॉडी में चली जाएगी आत्मा तो जिराफ का सर से लेके पांव तक उसको मच्छर भी काटे तो भी फील हो जाएगा. दिस इज द पावर ऑफ सोल. सो ये सोल जिस भी बॉडी में चला जाता है, वो बड़े से बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी बड़ा, आकाश तक असुर बड़ा हो जाए, पूरी बॉडी में उसको फीलिंग आ जाती है, कॉन्शियसनेस आ जाती है. तो ये है आत्मा की साइज. लिखो, साइज ऑफ सोल इज इक्वल टू, साइज ऑफ सोल इज इक्वल टू 1/10,000th पार्ट ऑफ टिप ऑफ हेयर. लिखा? 1/10,000 पार्ट ऑफ टिप ऑफ हेयर. आत्मा का हमें 4th पॉइंट मिल गया. 4th या 3rd पॉइंट मिला? लिख रहे हैं सब? 3rd पॉइंट मिला. साइज ऑफ सोल इज 1/10,000 पार्ट. आगे लिखो, 100 पार्ट्स ऑफ टिप ऑफ हेयर कट इनटू फर्दर 100 पार्ट्स. मतलब एक पार्ट लेके उसको वापस 100 पार्ट्स में कट किया तो साइज ऑफ सोल आ जाता है. ठीक है? साइज ऑफ सोल इज इक्वल टू 100 पार्ट्स ऑफ टिप ऑफ हेयर cut into further 100 parts. Now there are innumerable particles of spiritual atom which are measured as 1/10,000 of upper. Therefore, individual particle of spirit soul is spiritual atom. अब आप सोचोगे माता जी, जो हमें स्कूल में एटम सिखाया जाता है, क्या वो आत्मा है क्या? नहीं. स्कूल में जो एटम सिखाया जाता है वो तो फिर भी सिर्फ 100 पार्ट्स, टिप ऑफ हेयर को 100 पार्ट्स में कट करो, उतना ही माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है. आज तक माइक्रोस्कोप की लेंस बनी नहीं है जो एग्जिस्टिंग एटम को 100 पार्ट्स में कट करने के बाद अगर कुछ दिख जाए, ऐसी अभी तक माइक्रोस्कोप लेंस बनी नहीं है. बेस्ड ऑन भगवत गीता कोशिश तो बहुत जारी है, इंडियन साइंटिस्ट भी कोशिश कर रहे हैं, फॉरेन साइंटिस्ट भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक सक्सेस नहीं आई है. तो आज तक हमारा माइक्रोस्कोप कहाँ तक पहुंचा है? टिप ऑफ हेयर को 100 पार्ट्स में कट करने के बाद जो दिखता है वहां तक पहुंचा है, उसके आगे नहीं पहुंच पाया. इसलिए मटेरियल एटम तो फिर भी बहुत बड़ा है जो आपके साइंस बुक में सिखाया जाता है. मटेरियल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूरॉन होता है, ये सब कुछ तो फिर भी बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू द स्पिरिचुअल एटम. स्पिरिचुअल एटम दिखता ही नहीं है आंखों से. आंखों से मतलब ना माइक्रोस्कोप की लेंस से भी नहीं दिखेगा कभी. जो आंखों से नहीं दिख सकता उसको देखने के लिए आप माइक्रोस्कोप की लेंस कैसे बनाओगे? क्योंकि वो सिर्फ परसीव होता है, मतलब वो सिर्फ इंटेलिजेंस से समझा जा सकता है, देखा नहीं जा सकता. दिस इज वेरी स्मॉल स्पिरिचुअल स्पार्क एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल बॉडी.
Influence of spiritual spark is spread across all over the body, and active principles of some medicine spread throughout the body. This current of the spirit soul is felt all over the body as consciousness. तो इतना समझना कि इलेक्ट्रिसिटी जैसे पास होती है ना यहाँ से वहां, वैसे आत्मा से सारी एनर्जी पास होती है पूरी बॉडी में, हर एक पार्ट में। आपके पाव के टोज का लिटिल फिंगर है, वहां से लेकर आपके सर का सबसे टॉप का हेयर है, वहां तक हर जगह उसकी कॉन्शियसनेस फील होती है। ये प्रूफ है आत्मा की प्रेजेंस का। अगर आपको आत्मा है या नहीं है जानना है तो आप कहीं पे भी चूटी काट के देखो आपकी बॉडी में, आपको फील होगा दिस इज व्हाट आत्मा लुक्स लाइक। सो एनी लेमैन कैन अंडरस्टैंड मटेरियल बॉडी माइनस कॉन्शियसनेस इज डेड बॉडी। तो डेड बॉडी की डेफिनेशन आपको मिल गई। डेड बॉडी की डेफिनेशन क्या है? मटेरियल बॉडी माइनस सोल। लिखो, डेड बॉडी इज इक्वल टू मटेरियल बॉडी माइनस सोल। लिखा? डेड बॉडी इज इक्वल टू मटेरियल बॉडी माइनस सोल। और आगे प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो कॉन्शियसनेस होती है कैन नॉट बी रिवाइव्ड बाय बॉडी बाय एनी मीन्स ऑफ मटेरियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप बॉडी को बर्फ में रखो, हजारों लाखों साल तक रखो, या ममीफाई करके रखो, बड़े बड़े इजिप्शियन जो पिरामिड्स है उसमें रखा हुआ है, आप बहुत कोशिश कर लो कितना भी करके बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए। आप बड़े सारे पहाड़ों से सारे जड़ी बूटियां लाओ, आप बहुत सारे बर्फ लाओ, कुछ भी करो, फिर भी बॉडी के अंदर आत्मा आप खुद नहीं डाल सकते। आप कितनी भी को जो दिखता ही नहीं वो कैसे डालोगे आप? एज सिंपल एज दैट। सिर्फ कृष्ण भगवान के हाथ में ये शक्ति है, बाकी किसी के भी हाथ में ये शक्ति नहीं है। ओनली कृष्णा कैन डू दिस इम्पॉसिबल टास्क। इसलिए कृष्णा को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड कहा जाता है। कृष्णा ने अपने गुरु के बेटे को जिंदा किया था, मरे हुए बेटे को जिंदा किया था। आज तक ऐसा कोई नहीं कर पाया है। इट इज ओनली कृष्णा हु डज दैट। सो इट कैन नॉट बी रिवाइव्ड। द कॉन्शियसनेस मटेरियल बॉडी में, मटेरियल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या? ना फैक्ट्री, ना कोई कंपनी, ना कुछ भी करो, आप कितनी भी मेडिसिन खा लो, लेकिन डेड बॉडी के ऊपर आप ढेर सारा नमक डालो, ढेर सारा बर्फ डालो, उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करो, ठंडी की ठंडी बॉडी मिलेगी 1000 साल बाद भी। एंड दैट्स व्हाई वॉल्ट डिज्नी के जो ओनर थे उनका प्लान फेल हो गया। उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी कमाई मरने के बाद, उन्होंने किसी को नहीं दी दान में अपनी संपत्ति, उन्होंने सारी संपत्ति साइंटिस्ट को दी और बोला मेरी बॉडी को लेबोरेटरी में रखो और खोज करते रहो, जिस दिन आप आत्मा डाल पाओगे उस दिन आत्मा मेरे को इसी बॉडी में वापस डालना, मैं इसी बॉडी में वापस आना चाहता हूँ, वॉल्ट डिज्नी के ओनर ने बताया। और वो आज तक वैसे ही सफर कर रहे हैं, उनको वो वापस नहीं आए उस बॉडी में। कैसे आएंगे? अभी तक तो कितनी सारी 84 लाख योनियों में घूम रहे होंगे, आज भी पता नहीं किस बॉडी में घूम रहे हैं, हो सकता है बटरफ्लाई की बॉडी में हो। तो इट इज नॉट पॉसिबल आत्मा को शरीर में डालना, ये तो कृष्ण की कृपा से ही आत्मा। एक मिनट। So therefore, consciousness is not due to any amount of material combination, but due to spirit soul. मुंडक उपनिषद में बताया गया है कि सोल एटॉमिक साइज में होता है एंड कैन बी परसीव्ड थ्रू परफेक्ट इंटेलिजेंस। आप सोचोगे व्हाट इज परफेक्ट इंटेलिजेंस? परफेक्ट इंटेलिजेंस क्या वो होता है जो साइंस बुक में लिखा होता है? नहीं, परफेक्ट इंटेलिजेंस तो वो होता है जिसमें आप कृष्ण को जान लेते हो। परफेक्ट इंटेलिजेंस की परिभाषा ही है knowing Krishna as it is. How to know Krishna as it is? From the spiritual master who does not put any filter in telling you who Krishna is. कौन है spiritual master? प्रभुपाद। प्रभुपाद जैसे आचार्य होकर गए हैं, षड गोस्वामी होकर गए हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर जी, ऐसे जो आचार्य है जो आपको कृष्णा का ज्ञान एज इट इज देते हैं, अपना कोई भी फिल्टर बिना डाले, उसको कहा जाता है परफेक्ट ज्ञान। अब परफेक्ट ज्ञान को पाने वाला जो विद्यार्थी होता है, शिष्य होता है, वो परफेक्टली इंटेलिजेंट होता है, और जो ज्ञान दिया जाता है वो परफेक्टली इंटेलिजेंस से ही वो आत्मसात करता है। तो आत्मा का ज्ञान परफेक्ट इंटेलिजेंस से ही जाना जा सकता है। दिस एटॉमिक सोल इज फ्लोटिंग इन 5 काइंड्स ऑफ एयर, प्राण, अपान, व्यान, समान, उद्दान। तो आपकी बॉडी में 5 टाइप की वायु होती है। प्राण वायु होती है, अपान वायु होती है, व्यान वायु, समान वायु और उदान वायु। तो हमारी बॉडी में 5 टाइप्स ऑफ एयर होती है। ये 5 टाइप्स ऑफ एयर पूरी बॉडी में घूमती रहती है। इसलिए कहते हैं सुबह उठ के एटलीस्ट 10 टाइम्स ओमकारा बोलना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए,
ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज लोग योगा करते हैं, वैसे ये सारे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और योगा जो भी करता है उसको लंबे समय तक एक हेल्दी बॉडी प्रदान होती है। हेल्दी बॉडी, वैसे तो जी तो सभी लेते हैं, कुत्ते बिल्ली भी जी लेते हैं, जीने में फर्क है और एंड तक हेल्दी जीने में बहुत फर्क है। हेल्दी जीना है तो प्राण अपान व्यान समान उद्यान, ये पांचों वायुओं का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है, वो बैलेंस आइदर योगा से होता है या प्राणायाम करने से होता है, बट यू हैव टू क्रिएट दैट बैलेंस। क्यों? क्योंकि इनमें आत्मा फ्लोट होती है। अब एक्चुअल में आत्मा कहाँ फ्लोट होती है? जो वायु आपके हार्ट में फ्लोट होता है वहां से। क्या हार्ट में सिर्फ प्राणवायु होता है? नहीं, ये 5 टाइप के वायु हार्ट में से होके निकलते हैं। हार्ट में से होके निकलते हैं तो प्रैक्टिकली हमारी आत्मा जो है ये पांचों वायुओं के ऊपर फ्लोट कर रही होती है। इसलिए हार्ट ट्रांसप्लांटेशन में कभी भी इंसान मरता नहीं है। साइंटिस्ट सक्सेसफुल क्यों हुए हैं इंसानों को जिंदा रखने में? एक हार्ट निकाला, दूसरा डाला, फिर भी इंसान जिंदा कैसे होता है? इसी वजह से, क्योंकि आत्मा वहीं पे कैविटी में फ्लोट होती रहती है। आप हार्ट निकाल के रखो इंसान का, फिर भी आत्मा अंदर रहेगी ना, तो भी इंसान की बॉडी फिर भी जिंदा रहेगी। ऐसा 1 मिनट नहीं होता जब बॉडी मर जाती है। इट इज नॉट पॉसिबल। बॉडी तभी मरेगी जब आत्मा बाहर निकल जाएगी शरीर से। जब तक अंदर है, फ्लोट हो रही है। अभी देखो, हिरण्यकश्यपु ने जो तपस्या की थी उसको शरीर पूरा चींटियों ने खा रखा था, गले तक चींटियों ने खा रखा था, रिब्स तक दिखाई दे रहे थे, हड्डियां दिख रही थी आर पार, गले की भी सारी स्किन खा रखी थी। हिरण्यकश्यपु का सिर्फ चेहरे पे स्किन थी, बाकी पूरी बॉडी चींटियों ने खा रखी थी। इतना ज्यादा उसने तपस्या की थी और फिर भी वो जिंदा था। उसको दर्शन हुए तो ब्रह्मा जी की, तब बॉडी पूरी, उसको शरीर वापस मिल गया। तो वो कैसे जिंदा था? खड़ा कैसे था? स्किन तो सारी खा रखी थी, इंटेस्टाइन भी खा रखी थी, स्टमक भी खाया था, लीवर भी खाया था, स्किन भी खा रखी थी, आर पार सब कुछ दिखता था। यहाँ से पीछे का पेड़ दिख जाए और बीच में सिर्फ हड्डियों का ढांचा दिख जाए, ऐसे हो गया था। स्किन तो थी ही नहीं हिरण्यकश्यपु को, और फिर भी वो जिंदा था। कैसे? बिकॉज आत्मा वॉज फ्लोटिंग इन प्राण अपान व्यान समान उद्यान। ये सारे वायुओं में आत्मा फ्लोट हो रही थी हार्ट की कैविटी में। समझ आ रही है बात सबको? तो हार्ट हो ना हो फिर भी शरीर जिंदा रहता ही है। दैट इज द प्रूफ। हार्ट भी खा लिया था चींटियों ने, उनके लिए तो फूड है, वो तो खा लेते। और भी थोड़ी देर हो जाती, ब्रेन भी खा लेते, सब कुछ खा लेते, आपको सिर्फ एक स्केलेटन बॉडी दिखती तपस्या करने वाली, और फिर भी वो जिंदा रहती। फिर भी वो जिंदा रहती, उनको वापस बॉडी दे देते ब्रह्मा जी। सो दिस इज द नॉलेज बिहाइंड। ये ट्रू है। इसलिए लोग कहते हैं ना माइथोलॉजी माइथोलॉजी। लोग माइथोलॉजी क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके पास परफेक्ट इंटेलिजेंस नहीं होता, वो परसीव नहीं कर पाते आत्मा का ज्ञान। हरी बोल, कौन है? विघ्नेश। सो परसीव नहीं कर पाते आत्मा का ज्ञान, इसलिए क्या हो जाता है उनके साथ? वो भागवतम समझ नहीं पाते, कृष्णा को समझ नहीं पाते, परफेक्ट इंटेलिजेंस नहीं होता उनके पास, और उनको लगता है ये सब झूठ है। बॉडी कैसे सरवाइव कर सकती है सिर्फ ऐसे स्केलेटन पे? स्केलेटन मतलब डेड इंसान? नो, नॉट नेसेसरी स्केलेटन मतलब डेड इंसान, ऐसे को भी कहीं लिखा ही नहीं है। सो दिस एटॉमिक सोल इज फ्लोटिंग इन 5 काइंड्स ऑफ एयर. इट इज सिचुएटेड विद इन द हार्ट एंड स्प्रेड्स इट इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द बॉडी. पूरी बॉडी में उसका इन्फ्लुएंस होता है. So when the soul is purified from contamination of 5 kinds of material air, its spiritual influence is exhibited. जब आत्मा का शुद्धिकरण होता है ये 5 वायुओं से, तब आत्मा का एक्चुअल इन्फ्लुएंस एग्जिबिट होता है। कैसे? अभी देखो, हठ योगी जो होते हैं, सॉरी, ध्यान योगी जो होते हैं, ध्यान योगी जो होते हैं उनको पता होता है कि पूरी बॉडी से एक एक वायु माइनस कैसे करते जाना है। तो सारी वायु माइनस करने के बाद, मतलब बॉडी से छोड़ते हुए जाते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। तो उनको पता होता है एक सांस लेते वक्त और सांस छोड़ते वक्त धीरे धीरे उनको सिद्धि प्राप्त होती है। पहले वो उदान वायु छोड़ देते हैं बॉडी से, फिर धीरे धीरे समान छोड़ देते हैं, फिर व्यान छोड़ देते हैं, अपान छोड़ देते हैं, और एंड में अपने जो ब्रह्मरंध्र केंद्र होता है यहाँ से प्राण वायु छोड़ देते हैं। प्राण वायु छोड़ने के बाद आत्मा यहाँ से निकल जाती है उनकी, किसी और प्लैनेट पे चली जाती है, और नीचे की बॉडी डेड हो जाती है। अब वो दूसरे प्लैनेट पे जाते हैं तो वहां पे दे स्टार्ट रिसाइडिंग इन डिफरेंट बॉडी ऑल टुगेदर। वहां पे जाके उन्होंने नया बॉडी ले लेना और वहां पे तपस्या करना शुरू कर देना।
तो ये वाली जो ये होती है सिद्धि प्राप्त होती है, उनको टेक्निकली पहले समझना पड़ता है कि पांचों वायुओं के साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके कैसे कंट्रोल करना है, कंट्रोल करने के बाद गिव अप कैसे करना है। ये सारा स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एनीबडी कैन लर्न इट एंड प्रैक्टिस इट, और प्रैक्टिस करने के बाद हार्डली इट टेक्स 5-6 years ऑफ प्रैक्टिस। इतने प्रैक्टिस में भी आप ये सारी सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। बट देयर इज नो पॉइंट डूइंग ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि रहना तो है फिर भी मटेरियल वर्ल्ड में ही रहना है। तो इस सिद्धि के पीछे डिवोटी कभी भागता नहीं है। आप अगर ये बुक पढ़ोगे प्रभुपाद की, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, तो इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स ये 4 लाइंस पे बेस्ड है। ये 4 लाइन पे पूरी तरह इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स बुक पूरी तरह स्थित है। तो आप उस बुक में आपको सारा ज्ञान मिल जाएगा। प्रभुपाद की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, सारे इस्कॉन टेम्पल्स में आपको मिलेगी। नहीं है तो मुझे मैसेज करो, मैं आपको भिजवा दूंगी, ठीक है। सो इज दिस सिचुएटेड विद इन हार्ट एंड स्प्रेड्स ऑल ओवर द बॉडी व्हेन सोल इज प्यूरिफाइड। तो प्यूरिफाई करना पड़ता है आत्मा को, फिर एक्चुअल इन्फ्लुएंस उसका एग्जिबिट होता है। कुछ आत्माएं डिसाइड करती है ऊपर के लोकों में जाना है, कुछ लोग आत्माएं डिसाइड करती है यहीं पे वापस किसी और की बॉडी में जन्म लेना है। So the Hatha Yoga system is meant for controlling the 5 kinds of air, encircling the pure soul by different kinds of sitting postures. अलग अलग posture में बैठकर आप हर एक एयर को कंट्रोल कर सकते हो। एंड नॉट फॉर मटेरियल प्रॉफिट बट फॉर लिबरेशन ऑफ सोल। तो आपकी अगर आपको मुक्ति चाहिए, ठीक है, तो हठ योगा फॉलो करो। फिर अगर आपको सिर्फ इसी मटेरियल वर्ल्ड में रहना है तो ध्यान योग फॉलो करो। लेकिन अगर आपको मटेरियल वर्ल्ड से बाहर ही निकल जाना है, सिर्फ मुक्ति चाहिए, कृष्ण की शरण नहीं चाहिए, ब्रह्म ज्योति में जाना है, तो लोग क्या करते हैं, हठ योग फॉलो करते हैं, 5 टाइप के एयर से मुक्त हो लेते हैं और निकल जाते हैं बॉडी से। इतना सिंपल है। तो एनी मटेरियल प्रॉफिट लिबरेशन के लिए अगर आप चाहिए तो हठ योग फॉलो कर लेते हैं। समझ में आ रहा है सबको? हठ योग में क्या करते हैं, अलग अलग पोजिशन में बैठा जाता है या खड़ा हुआ जाता है। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? माता जी, हाँ जी, माता जी मतलब अष्टांग योगा का आसन क्या? हाँ जी, आसन, आसन वाला part? आसन, आसन, हठ योग आसन। आसन होते हैं ना, अलग अलग आसन होते हैं। अगर उदान वायु को कंट्रोल करना है और गिव अप करना है, उसके लिए अलग आसन होगा। इसको करना है लेकिन इसके लिए अलग आसन होगा, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, और प्राण के लिए अलग आसन होगा। आई बात समझ में? सो अलग अलग आसन होते हैं। ये सब हिमालय में जो योगी होते हैं ना, वो एक दूसरे को सिखाते हैं, सीख कर आते हैं। और फिर कुंभ मेला में जाना, आपको ऐसे लाखों लाखों योगी मिलेंगे, हठ योगी, जो अलग अलग आसन में बैठे रहते हैं और डिसाइड करते हैं बॉडी को क्या छोड़ना है और मुक्ति पानी है। दे ट्राई ऑल दीज थिंग्स एंड दे अचीव लिबरेशन ऑल्सो। कुंभ मेला में बहुत सारे हठ योगी मिल जाते हैं। कुंभ मेला में नहीं, धर्मशाला चले जाओ, ऋषिकेश चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, बहुत सारे हठ योगी मिलेंगे। पहाड़ों में तो बहुत हठ योगी मिल जाते हैं, उनको ये सारी इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज भी होती है। ठीक है जी, अंडरस्टूड? यस माता जी। तो हठ योग से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए आत्मा को इन 5 वायु से मुक्त कराना है, दैट्स इट, और आपको मुक्ति मिल जाती है। इतना आसान है। तो मुक्ति मिलना कोई रॉकेट साइंस है नहीं, लेकिन फिर भी भक्त मुक्ति के पीछे भागता नहीं है, क्योंकि भक्त को ना भुक्ति चाहिए होती है ना मुक्ति चाहिए होती है, उसको सिर्फ भक्ति चाहिए होती है। इसलिए वो इस सब के चक्कर में नहीं पड़ता। लेकिन ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कल को अगर आप कोई आया, आपको बोला चलो चलो मैं आपको ऐसी सिद्धि देता हूँ जिससे तुम 2 मिनट में ऐसे ब्रह्म ज्योति में जा पाओगे, तुम इस प्लैनेट से उस प्लैनेट में उड़ पाओगे, आपको बिल्कुल भी कोई आपकी बॉडी भी नहीं रोक सकती, ऐसी लिमिटेशन, इससे अट्रैक्ट मत होना। ऐसी चीजों से अट्रैक्शन हो जाएगी तो फॉल डाउन हो जाएगा। क्यों फॉल डाउन होता है? क्योंकि आप चूज करते हो मटेरियल वर्ल्ड में रहने के लिए, आपकी चॉइस गलत हो जाती है। फिर चॉइस गलत कब होगी? जब हम डिसाइड करेंगे कि गोलोक नहीं जाना, इधर ही रहना है, घूमते रहना है। अभी तो बस इतने ही सपने हैं अमेरिका जाने के, किसी के जर्मनी जाने के सपने हैं, किसी के यूके जाने के सपने, किसी के अमेरिका जाने के सपने हैं। अब थोड़े और ज्यादा, इन लोगों से भी ज्यादा एम्बिशियस अगर स्पिरिचुअलिस्ट हो गया तो उसके सपने हो जाते हैं ब्रह्मलोक जाने का, सत्यलोक जाने का, उड़ने का, इधर उधर जाने का, विदाउट एनी बॉडी घूमने की इच्छा हो जाती है। और ज्यादा एम्बिशियस हो जाओ, मन करता है ब्रह्म ज्योति में जाके स्थित हो जाओ, टेंशन ही नहीं है, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना बुढ़ापा आएगा, ना बीमारी आएगी।
तो बीमारी में स्पिरिचुअलिस्ट सोच बैठता है ऐसा, कभी कभी ऐसे होता है जिसने हठ योग प्रैक्टिस किया होता है उससे बीमारी सही नहीं जाती, उसको बड़ी तकलीफ होती है, मानो स्किन डिसीज हो गया, उसको खुजली हो रही है, 24 घंटे उनको स्किन पे पस निकल रहा है, तो वो सोचेगा अरे मुझे हमेशा के लिए मुक्ति चाहिए शरीर से। अभी किसी के रिश्ते में किसी ने धोखा दे दिया उसको, तो उसको लगेगा मुझे मुक्ति चाहिए, तो वो ये सारी टेक्निक्स की यूज करेगा, इन टेक्निक्स को यूज करके मुक्ति प्राप्त करने की कोशिश करेगा। तो ऐसी चीजों से अट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि इससे तो आप इस काले काले मटेरियल वर्ल्ड में ही रहोगे, बाहर नहीं निकल पाओगे, लाइट ऐसे ऊपर नहीं जा पाओगे और ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म ज्योति की ओर जा पाओगे। वहां पे देर इज नो फन, देर इज नो एंटरटेनमेंट, नथिंग, इट इज वेरी बोरिंग स्पेस टू बी देयर। तो इसलिए अट्रैक्ट नहीं होना, इसलिए भगवत गीता का स्टूडेंट को सब पता होता है। भगवत गीता का स्टूडेंट ऐसा नहीं होता जो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है ऐसी चीजों से, ठीक है। पैरेलली ये बुक पढ़ना, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, आपको आत्मा का और ज्यादा अच्छे से ज्ञान आएगा, ठीक है। मैंने तो पढ़ी थी जब मैं छोटी थी, मुझे बहुत फायदा हुआ था, आप भी पढ़ लेना। So the constitution of atomic soul is admitted in all Vedic literatures. It is actually felt in practical experience by a sane man. तो जो तो सेन मैन है, जिसकी तो बुद्धि स्थित है, उसको आत्मा समझ में आएगी। जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है वो तो फिर भी कहेगा बॉडी इज मेड ऑफ केमिकल्स। तो प्रभुपाद कह रहे सेन मैन मतलब उसके सर में ना आलू टमाटर नहीं होने चाहिए, उसके सर में थोड़ी सी सत विवेक बुद्धि होनी चाहिए, वो समझ जाएगा कि शरीर में आत्मा कैसे घूम रही है। So only insane man can think of this atomic soul as all pervading विष्णु तत्व। तो जो एक इंसेन मैन है वो इस आत्मा को ऑल परवेडिंग विष्णु तत्व समझ सकता है। तो ये इनसेन किसको कह रहे हैं प्रभुपाद, बताओ, इनडायरेक्टली किसको बता रहे हैं? प्रभुपाद ने तो जोक ही मार डाला यहाँ पे, बताओ प्रभुपाद किसको बोल रहे हैं इनसेन मैन? किसको बोल रहे हैं प्रभुपाद, बताओ, कौन सोचेगा एटॉमिक सोल विष्णु तत्व है, ऑल परवेडिंग? माताजी मायावादी। हाँ शाबाश। तो देखो प्रभुपाद कितने सोफिस्टिकेटेडली जोक मार के चले जाते हैं पॉपॉट में। कह रहे हैं कि इंसेन मैन मतलब पागल इंसान ही ये सोच सकता है कि आत्मा का जो कॉन्शियसनेस है वो विष्णु तत्व की तरह पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। पॉसिबल है? आपको लगता है हमारा एग्जिस्टेंस पूरे ब्रह्मांड में है? लगता है ऐसे? हमारा एग्जिस्टेंस तो हमारी बॉडी तक ही लिमिटेड है ना, जा रहा है कहीं और? है क्या एग्जिस्टेंस पूरे ब्रह्मांड में? है हमारा एग्जिस्टेंस विष्णु नो तत्व? माता जी। नहीं ना। लेकिन मायावादी क्या कहते हैं? आई एम गॉड। अब आई एम गॉड बोलोगे तो आपका एग्जिस्टेंस तो पूरे ब्रह्मांड में आ जाना चाहिए ना, मटीरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वो तो आया नहीं, नहीं आया ना। तो ऑल परवेडिंग विष्णु तत्व आप हो क्या? हम है नहीं। क्या ऑल परवेडिंग विष्णु तत्व? क्या हम किसी और की बॉडी में है क्या? आप मम्मा की बॉडी में हो क्या? नहीं माता जी। आपकी मम्मा को बुखार आ जाता है तो क्या आपको भी बुखार आ जाता है क्या? इमीडिएटली आपको फील होता है क्या? नहीं। नहीं ना। यू आर नॉट इनसाइड योर मम्माज बॉडी ऑल्सो, व्हाट टू टॉक अबाउट बीइंग इन एंटायर मटेरियल वर्ल्ड, नॉट पॉसिबल। तो आई एम गॉड प्रूव कैसे होता है? टेक्निकली भी प्रूव नहीं हो सकता, एज एट सोल लेवल भी प्रूव नहीं होता। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं एक पागल इंसान, एक इंसेन मैन, इंसेन मतलब अल्टीमेटली पागल, उसके अंदर थोड़ी सी भी बुद्धि नहीं है। एक इंसेन मैन ही ऐसे सोच सकता है कि एटॉमिक सोल, इतना छुटकू सा सोल है, उसका क्षेत्र शरीर तक लिमिटेड है, वो कैसे विष्णु तत्व बन सकता है? वो कैसे पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ हो सकता है? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। एट द टाइम ओनली उसका इन्फ्लुएंस एक बॉडी पे रहता है, और कृष्णा का इन्फ्लुएंस सारी बॉडीज पे रहता है। कृष्णा का इन्फ्लुएंस सारी बॉडीज पे है या नहीं है, हमें पृथु महाराज की स्टोरी से ही पता चलता है। जितनी भी लोग भूखे मर रहे हैं उसके लिए पृथु महाराज को इतना गुस्सा आया, इतना फील हुआ कि वो पृथ्वी माता को मारने चले गए। दैट इटसेल्फ इज अ प्रूफ। यस और नो? यस और नो? हाँ माता जी। हाँ माता जी। बस फिर तो मायावादी ही है ऐसे लोग
जो उल्टा पुल्टा बोल सकते हैं कि आत्मा का इन्फ्लुएंस पूरा विष्णु तत्व की तरह पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है. इन्फ्लुएंस ऑफ एटॉमिक सोल कैन बी स्प्रेड ओनली थ्रू द पर्टिकुलर बॉडी. आत्मा ऑल परवेडिंग विष्णु तत्व नहीं हो सकती. ऑल परवेडिंग विष्णु तत्व सिर्फ कृष्ण है और हम सिर्फ एक बॉडी तक हमारी लिमिटेशन है. अब समझ में आया हम कितने लिमिटेड जीवात्माएं हैं. गॉट इट. हाँ माता जी. चलो आज हम भगवद गीता की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं. ठीक है जी. भगवद गीता की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री राधा श्याम सुंदर की जय. श्री कृष्ण बलराम की जय. वृंदावन धाम की जय. छोटे छोटे भक्तों की जय. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय. हरे कृष्णा माता जी, गुड नाइट. हरे कृष्णा माता जी. गुड नाइट. गुड नाइट. हरे कृष्णा माता जी. हरे शुभ कृष्णा रात्रि. शुभ रात्रि. माता जी. हरे कृष्णा. हाँ से माता जी आप वो जो आपने पॉइंट्स बताए थे वो क्या आप वो फिर से रिपीट करेंगे? पॉइंट्स कौन से अभी इस पॉपॉट से बताए थे. हाँ माता जी वही. फर्स्ट पॉइंट तो हमने डिस्कस किया था कि सोल कैरीज कॉन्शियसनेस एवरीवेयर. सोल ओके माता कैरीज जी. कॉन्शियसनेस. दूसरा पॉइंट था कि सोल कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू विद इन वन बॉडी. ओनली वन बॉडी. एक आत्मा एक बॉडी. दैट्स इट. एक आत्मा दो बॉडी हो सकती है क्या. कई सारे लोग कहते हैं ना कि हम दो बॉडी एक जान है. कहते हैं ना वी आर टू बॉडीज वन सोल. ऐसा कभी नहीं होता. यू कैन बी सोलमेट्स बट यू कैन नॉट बी टू बॉडीज वन सोल. देयर विल बी टू बॉडीज टू सोल. थ्री बॉडीज थ्री सोल. वो तो बस भावग्रही होकर बोल लेते हैं कि वी आर टू बॉडीज वन सोल. ऐसा नहीं होता. एक बॉडी वन वन सोल वन बॉडी. वन सोल ओनली इन्फ्लुएंस ओवर ओनली वन बॉडी. ठीक है जी. हाँ. ये नेक्स्ट पॉइंट है. फिर दूसरा पॉइंट है कि साइज ऑफ सोल. साइज ऑफ सोल है 1/10,000 पार्ट ऑफ टिप ऑफ हेयर. 1/10,000 पार्ट ऑफ टिप ऑफ हेयर है. हाँ माता जी. फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्पिरिचुअल एटम is far smaller than material atom. Spiritual atom is equal to soul. ओके माता जी. ठीक है. फिर उसके बाद मटीरियल डेड बॉडी इज इक्वल टू मटीरियल बॉडी बॉडी माइनस माइनस सोल. उसके ओके माता जी. पॉइंट है. उसके बाद का पॉइंट है सोल कैन बी परसीव्ड बाय परफेक्ट इंटेलिजेंस. उसके बाद है सोल फ्लोट्स इन द बॉडी. सोल फ्लोट्स इन द बॉडी इन द कैविटी ऑफ हार्ट. हार्ट की कैविटी होती है वहां पे फ्लोट करता है. किया. फिर हाँ माता पांच जी. पांच टाइप के एयर लिखो. 5 टाइप के एयर आपको पता है ना. प्राणपान व्यान समान उद्यान. प्राणपान व्यान समान हाँ उद्यान. माता जी. सो सोल फ्लोट्स ऑन हाँ. 5 टाइप्स ऑफ एयर. फिर उसके नीचे लिखना थ्रू हठ योगा. थ्रू हठ योगा सोल
कैन अचीव लिबरेशन। फिर नीचे लिखना थ्रू आउट योगा सोल कैन अचीव लिबरेशन। Okay. नीचे लिखना लिबरेशन इज इक्वल टू फ्रीडम फ्रॉम प्राण अपान व्यान समान उदान। दैट्स इट, इतना ही है। एंड देन नीचे लिखना insane man is equal to one who thinks soul is all pervading विष्णु तत्व। ऐसे लिखना insane man is equal to one who thinks soul is equal to all pervading विष्णु तत्व। जो आत्मा और परमात्मा को एक समझता है बेसिकली वो सबसे बड़ा गधा, क्योंकि परमात्मा सबकी बॉडी में जाके फील करती है, आत्मा सिर्फ अपनी बॉडी में फील कर सकती है। इसीलिए तो इतने लोग मांसाहार करते हैं, उनको फील ही नहीं होता दूसरे का दर्द, फील ही नहीं होता, तभी तो काटते हैं इतने सारे ह्यूज लेवल पे। मशीनरी मैन्युफैक्चर करते हैं, जो इंजीनियर मैन्युफैक्चर करता है वो सबसे बड़ा गधा है, जिसने इतने मैकेनिकल इंजीनियर ने ऐसी मशीनें बनाई है ब्लेड वाली। उसके बाद इलेक्ट्रिक इंजीनियर गधा है, जिसने उसमें इलेक्ट्रिसिटी डालने की मेथड डाल दी। उसके बाद वो बाकी सारे जो सिविल इंजीनियर्स है जो कंस्ट्रक्ट करते हैं कसाई खाना, वो गधे हैं। उसके बाद जो चला रहा है वो भी बड़ा गधा है। तो ये सारे लोग हैं। तो ये आत्मा और परमात्मा को जो एक समझते हैं वो सबसे बड़े गधे हैं। insane man is equal to one who thinks soul is equal to all pervading विष्णु तत्व। अगर वो लोग अगर विष्णु तत्व होते तो उनको फील नहीं होता, सबका पेन नहीं फील होता ना, तभी तो ऐसे गलत काम करते हैं, नहीं तो क्यों करेंगे। गॉट इट? हाँ माता जी। किसी और की उंगली मोड़ो और आपकी उंगली में दर्द हो जाए तो आप उंगली नहीं मोड़ोगे ना, लेकिन दूसरे की उंगली मोड़ने से आपको अगर दर्द हुआ तो आप दूसरे की उंगली मोड़ना बंद करोगे। बट उसकी उंगली मोड़ने से सिर्फ उसको दर्द हो रहा है, आपको नहीं दर्द हो रहा, इसलिए आप दूसरे की उंगली मोड़ते हो। ये फर्क है। आत्मा का इन्फ्लुएंस सिर्फ एक बॉडी पे, परमात्मा का इन्फ्लुएंस सारी बॉडी पे। एज सिंपल एज दैट। यही है, अभी तक इतना ही है, बट बहुत अच्छा श्लोक है अविनाशी तु तद्विधि। इतना अच्छा पर्पॉट है ना, पर्पॉट ऑफ सेकंड चैप्टर। मतलब हर एक पर्पॉट डायमंड है वैसे तो, यू रियली कांट से दिस इज बेटर देन दैट, बट वन ऑफ द बेस्ट पर्पॉट। आपको आत्मा का ज्ञान एक बार आ गया ना, इट इज वन कैन बी अनकॉन्करेबल। उसको कभी दुख नहीं होता, दुख से मुक्ति हो जाती है, भय से मुक्ति हो जाती है। सबसे पहले तो तमोगुण है, भय भी तमोगुण है, तो तमोगुण से धीरे धीरे मुक्ति आ जाती है सिर्फ आत्मा का ज्ञान होने से। ना उसको लालच, ग्रीड, लस्ट और एंगर, ये तीनों चीजें उसके ऊपर हावी नहीं होती। उसको दुख नहीं होता किसी चीज का। दुख होना भी तमोगुण है, गुस्सा होना भी तमोगुण है, और ये भी तमोगुण है, भय तमोगुण है। तो आत्मा के ज्ञान से ये सारी चीजें एक एक करके माइनस हो जाती है। इसलिए भगवद गीता बहुत 100% सरेंडर करना चाहिए। ठीक है जी, चलो। हाँ